Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. Today I'm going to start one more topic which is usually come in the competitive exams and it is very important in day-to-day life. Did you ever wondered कभी भी हम किसी भी ऑटो रिक्शा में जाते हैं and how an auto rickshaw can calculate a fare or how can we calculate a fare? Yes. Can you think about it? It's very simple. Did you ever heard the name linear equation? Yes. We will use linear equation in one variable or two variable or three variable. It depends on the situation, but usually we will use linear equation in one variable when we find a fare of an auto rickshaw, of a taxi or any rickshaw. So let's find out what is linear equation and how do we apply linear equation in our day-to-day life. A linear equation is an equation where highest power of a variable, that is x or y or any alphabet, is equals to 1. जो भी highest power है उस variable की अगर वो 1 होगी then the equation is known as linear equation. For example, 2x plus 13 is equals to 15, 4x is equals to 16 and so on. यहाँ पर x की power जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है. Here the highest power of x is 1, then this equation is known as linear equation in one variable because there is only one variable. इस पूरी equation में एक variable है इसलिए linear equation in one variable. And now let us discuss how linear equation can help us to solve real life examples. So there are three simple steps to solve a linear equation. Number 1, understand the problem. Number 2, form an equation and number 3 is solve it. सबसे पहले देखो, समझो, बनाओ, फिर solve. Let us take one example. A taxi charges ₹50 as a base fare and ₹10 per kilometer. If total fare is ₹150, find the distance traveled. कोई भी एक टैक्सी है जिसका बेस फेयर जो है वो ₹50 है, मतलब वो ₹50 से स्टार्ट होती है और वो ₹10 आगे बढ़ती चली जाती है पर किलोमीटर के हिसाब से. उसका टोटल फेयर ₹150 बन रहा है. हमें बताना है व्हाट फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल. तो जो हमें चीज़ निकालनी होती है, लेट अस अज्यूम दैट थिंग बी x. यहाँ पे डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस बी x. तो 10, क्योंकि 10 किलोमीटर है तो 10x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 150. अभी हमने सबसे पहले क्या करा, प्रॉब्लम को समझा, फिर हमने एक इक्वेशन को उस प्रॉब्लम के थ्रू बनाया. अब जब हम इक्वेशन बना चुके हैं तब उस इक्वेशन को हमने क्या करा, सॉल्व करा. इट मीन्स वो कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. सबसे पहले अगर कहीं पर भी डिस्टेंस की बात हो और पैसों की बात हो तो वहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन लगाएंगे. एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है एज बेस्ड क्वेश्चन. अगर एक बच्चे के फादर की एज उससे 2 टाइम्स है, 10 साल बाद एज क्या होगी. And similar to that, let us take one example of age problems. A father is 3 times the age of his son. Sum of their ages is 40 years. Find their ages. Father की age जो है वो 3 times है age of his son. तो father, let us assume that सन की एज क्या होगी, x होगी, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स मतलब 3x. उन दोनों का सम x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स, 4x इज इक्वल्स टू 40 ईयर्स, x इज इक्वल्स टू 10. इट मीन्स द एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स and age of father is 30 years. क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्या करा, समझा. समझने के बाद हमने उसको लीनियर इक्वेशन में कोई चीज़ एज्यूम कर एक इक्वेशन को फॉर्म करा
और जब इक्वेशन एक बार फॉर्म हो जाती है तो सॉल्व तो हम चुटकियों में कर लेते हैं. दिस इज द basic method of solving any linear equation. Let us take one more real life example of linear equation, that is shopping problems. The question is, cost of one pen is ₹5 and total cost is 175. You have to find how many pens were there. So one pen की cost ₹5 है. So let us assume there are x pens. पेन्स कितने हैं? x पेन है, तो x इंटू 5 इज इक्वल्स टू 175. x इज इक्वल्स टू 175 डिवाइडेड बाई 5. 5 3s are 15, 5 5s are 25. That means pens are 35. There are 35 pens in total. So these are the general questions which usually use in competitive exam. There are 3 terms in linear equation which are very important, और आप उनको अगर देखेंगे तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि whether we are using addition, multiplication और subtraction. किसी भी क्वेश्चन में आपको टोटल पता लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वहाँ पर हम एडिशन यूज़ कर रहे हैं. किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस मालूम चल रहा है आपको, या कहीं भी बोल रहा हो फाइंड द डिफरेंस, तो आप इसका मतलब वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं. और अगर कहीं पर भी आपको पर लिखा हुआ मिले तो इट मीन्स वहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है. जैसे कि टैक्सी चार्जेस ₹10 पर किलोमीटर. इट मीन्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है 5 या 10 या जो भी है. तो वेरिएबल के साथ अगर कहीं पर टोटल है तो वेरिएबल के साथ एडिशन होगा, कहीं पर भी डिफरेंस है तो वेरिएबल के साथ माइनस में आएगी, और अगर कहीं पर भी पर लिखा हुआ आ रहा है तो वेरिएबल के साथ इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड आई होप जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं आप उसको कभी भी अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपने दिमाग में रखेंगे. सो प्लीज़ श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.